Welcome to this new series and greetings at whatever time you're watching. This will be our second lecture, and in this, we'll be looking at water as input. And sorry for the last video, it became a little bit wrong. I lost the track of my time. But again, वो पहला था इसीलिए मुझे थोड़ा समय लग गया आप लोगों को बताने में. बट अब से ऐसा नहीं होगा. आई विल ट्राई कीपिंग द लेक्चर विद इन हाफ एन आवर टाइम फ्रेम. ओके, सो GS3 का सेकेंड लेक्चर है ये. Technically third video, but second lecture on agriculture. So welcome my fellow UPSC aspirants. So water as input जब हम पढ़ेंगे तो we need to see the dimensions of questions which we can answer after studying this. Now the question was, this question was asked in 2021. The question is, how and to what extent would micro irrigation help in solving water crisis? Second is, suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario. नो पढ़ के देखो ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कि काफी पेचीदा होगा, कुछ आंसर करने लायक है कंटेंट नहीं है हमारे पास. दूसरा, what is water use efficacy? Describe the role of micro irrigation in increasing the water use efficiency. Now देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डेटा हम पढ़ के जाएंगे जरूरी नहीं क्वेश्चन उसी में से आए, बट या कीवर्ड के अराउंड तो रह रहा है, बट उसके अराउंड आएगा या नहीं आएगा ये नहीं पता. बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेटा हम पढ़ के जा रहे हैं उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे. राइट, अगेन हम इसको भी उसी नोट्स में पढ़ेंगे. व्हाट, व्हाई, हाउ, challenges, benefit and way forward. यही रहेगा हमारा पढ़ने का पैटर्न. एंड towards the end of this video I will show you the content I have curated for you. उसको आप कैसे आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो. ओके, सो वाटर एज इनपुट में देखेंगे तो वी नीड सम इंट्रोडक्शन. सो देखो ये सारा इंट्रोडक्शन ही है. यू कैन टेक नोट ऑफ देम, memorize few of them, and then you will be able to replicate few of them in exam. जैसे अगर what जैसे मुझे यही क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल, how and to what extent would micro irrigation help solving India's water crisis? So पहले मुझे इंट्रोडक्शन में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इंडिया में वाटर क्राइसिस है भी. राइट, एक एस्टैब्लिश करूंगा मैं, इंट्रोडक्शन यहीं से होगा. आई विल नॉट से व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन, इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं. सो माई explanation will be, I can use anything. As per WaterAid's Water Quality Index, India ranks 120 out of 122 nation on water quality index. Nearly, or I'll say, as per WaterAid Water Quality Index, nearly 70% of water is contaminated in India. Or as per Economic Survey 2023 and 2024, area under irrigation, that is gross cropped area, has increased to 55% in 2020 and 2021 from 49.3% which was in 2015 and 16. Or I can also say, as per Economic Survey 2023-2024, irrigation intensity increased by 10.3%, but cropping intensity has increased by 12.8%. Not very much big margin. Or I can also say, UN's report on SDG 6, just by quoting this, I can say clean water and sanitation for all by 2030. This is the report which says UN reports on SDG 6, clean water and sanitation for all by 2030. India has achieved only 56% of the target and we are already in 2026. सिर्फ 56% अचीव कर पाए. और फिर अगर हमें और भी अच्छा आंसर लिखना है या फिर और भी डेटा ड्रिवन या फिर कीवर्ड ड्रिवन लिखना है तो विल राइट, as per Tolkien water indicator which puts India in water stressed area, water availability has decreased from 5,178 meter cube per year to 5,044 meter cube per year in 2011. Further, which is expected to go down to 11,144 meter cube per year. So now see, my answer becomes very interesting at the very first instance. So ये सारे information आप use करोगे introduction लिखने के लिए. अब what is Talcon meter? So Talcon meter is the ratio of water availability to total land. उसका एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं which is 1700 मीटर क्यूब से अगर पानी लेस है तो इट, अगर टॉल्कन इंडिकेटर लेस है तो इट इज वाटर स्ट्रेस्ड, अगर बिलो 1000 है तो इट इज वाटर स्कार्स्ड. ओके, अब देखो वी कैन
quote this in example of case study. Israel manages it with only 250 meter cube of water. And in I2U2, India is in cooperation with Israel I2U2 में. So we have very interesting introduction here. अब जैसे यही क्वेश्चन था, let's see, suggest measures to improve water shortage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario. So what will write? Water shortage is less availability of water. This is not your introduction. ये 10वीं के बच्चे लिखते हैं. Let's start with any report. World World Resource Institute data suggests that 25 countries, including India, faces severe water stress. 50% of world's population are under water stress area for at least 1 month every year. Or I can say 35% of global GDP will be exposed to water stress by 2050. Just by writing this, I have established that हाँ water scenario, water में water stress तो है. And another report says, that is report on interconnected disaster report on 23. It says that, which is released by United Nations University, says Indo-Gangetic Plain has already passed the water stress tipping point in terms of groundwater. So see, these are the data which I be using in introduction, और कहीं भी मुझे फिलिंग करना है तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है, ओनली 40% ऑफ अर्बन वाटर जो है, सॉरी वाटर ट्रीटिंग मैकेनिज्म, only 40% of urban waste is being treated. So there is a still gap of 60% potential है जिसको हम treat करके water को use कर सकते हैं. So this becomes very important introductions. So okay. Next, some important terms क्या है? Irrigation potential created. So what is irrigation potential created? It is the ratio. No, it is not exactly ratio. It is total gross area proposed underwater irrigation. ठीक है? So what is area proposed underwater irrigation? For example, if I have this piece of land and I'm irrigating this once a year, so this is my irrigation potential I have created. Now if I irrigate this twice a year, then it is 2 times. This is 2 times the potential I have created. Okay, so it is total gross area under water irrigation. The area is counted as many times as the crops are irrigated. अगर मैं इसमें 2 बार पानी डालता हूँ, 2 बार सिंचाई करता हूँ, तो ये 2 बार काउंट करूंगा मैं इस एरिया को. अगर मैं इस एरिया को 3 बार पानी डालता हूँ, तो मैं इस एरिया को 3 बार काउंट करूंगा. और इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड क्या है कि मैंने जितना वाटर एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, for the period of in this time frame to irrigate this, it is total irrigation potential utilized. So जितना भी area actually irrigated during this reference period is called irrigation potential utilized, जिसको IPU भी बोलेंगे आगे चल के हम लोग, और IPC बोलेंगे. ठीक है, irrigation potential created. And what is water use efficacy? So water use efficacy is ratio between water actually extracted upon water actually used. Okay, so water use efficacy, so this is a ratio between water actually utilized and water extracted. So this is very important कि water use efficacy हमें ये बताएगा कि हम कितना पानी को judicious इस्तेमाल कर रहे हैं. कि हम निकाल लिए 50 लीटर, काम था हमें 10 लीटर का है, ब्रश कर रहे हैं, नल ऑन है, सो वाटर यूज एफिकेसी रिड्यूस हो गया वहां पे. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. नेक्स्ट, अब जब वाटर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ लिए, तो नेक्स्ट हमारा एम क्या है पढ़ने का, कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वाटर मैनेजमेंट में. सो व्हाट आर द चैलेंजेस? तो जैसी वाटर की बात आएगी ना, या फिर वाटर लैंड कुछ भी एग्रीकल्चर की बात है, हमें 2 रिपोर्ट तो बाय डिफॉल्ट नींद में याद आना चाहिए, अशोक दलवाई पैनल कमेटी का रिपोर्ट और मिहिर शाह रिपोर्ट. अब चैलेंजेस कैन बी ऑन बोथ साइड. जस्ट इमेजिन कि अगर आप हो और आप अपने एक कॉन्टिन्यूम में फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम डिमांड साइड टू सप्लाई साइड, आप कहीं खड़े हो, आप इधर देखोगे एक डिमांड साइड है, इधर देखोगे सप्लाई साइड है, आपको किस किस लेवल पे वाटर मैनेजमेंट में चैलेंजेस आ सकते हैं. सो वाटर मैनेजमेंट विल हैव चैलेंजेस एवरीवेयर. तो डिमांड साइड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? दैट our agriculture is rain fed agriculture. Example, 52% is equal to almost 72 million hectare area in India are rain fed. There is a mismatch between IPC and IPU. Almost 32 million hectare का mismatch है कि हम पानी क्रिएट वाटर
इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट तो कर दिए हैं, यूटिलाइजेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ओवर इरिगेट कर रहे हैं, वो पानी बह जा रहा है, जमीन की सोखने की ताकत कम हो जाती है, पानी बह जाता है। देन सब ऑप्टिमल क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम। अब जैसे हम अभी क्रॉप लगा रहे हैं, वाटर लगा रहे हैं, सॉरी वाटर वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, एंड देर इज नो रेन, व्हाट विल आई बी डूइंग? मैं उसको ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्शन शुरू करूंगा। सो देर इज अ सब ऑप्टिमल क्रॉप। तभी तो हम अलग अलग मैप्स लेके आ रहे हैं, अलग अलग ऐप लेके आ रही है गवर्नमेंट, फॉर व्हाट? टू क्लाइमेट बेस्ड रेजिलियंट क्रॉपिंग पैटर्न लाने के लिए। सो इफ दिस ईयर the rain is not gonna happen for, let's say, prolonged period of time, so my cultivation should start later. So suboptimal crop and cropping system should be changed. ये एक इशू है हमारे साथ। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फैसिलिटी, जो ऑलरेडी हमारे पास है हम उसको ही नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं सही से। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डैम्स एंड कैनाल्स विच हैव गॉन ड्राई, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो सूख गए हैं, हम वाटर समय से उन पे हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन अगर कहीं कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा कर दे रहे हैं कि वाटर सैलिनिटी एंड सॉइल सैलिनिटी हो जा रही है, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। जैसे जब हरियाणा और पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन में पीक कर गया था सब्सिडीज एंड एवरीथिंग, सॉइल सैलिनिटी बिकेम वेरी क्रिटिकल इशू देयर। तभी हम जिप्सम विप्सम यूज़ करके उसको बैलेंस कर रहे थे, एल्कलाइन सॉइल सैलिनिटी को बैलेंस कर रहे थे। एंड देन देर इज पोल्यूशन एंड क्वालिटी इशू। सो पोल्यूशन एंड क्वालिटी इशू में क्या, अभी तुरंत हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग ओनली 40% वाटर इज बीइंग ट्रीटेड। अर्बन इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ है, क्योंकि ओवर इरिगेट कर रहे हैं, वाटर वाटर ग्राउंड की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जा रही है, एंड उससे वाटर रन ऑफ हो रहा है, वाटर रन ऑफ के साथ साथ सॉइल इरोजन भी हो जा रहा है। एंड देन टॉक्सिक कंटामिनेशन, एक जगह का टॉक्सिक दूसरी जगह फ्लो करके भी तो जा रहा है, यहाँ की सॉइल तो खराब है ही, और वो जो टॉक्सिक फ्लो करके जा रहा है वो यहाँ की सॉइल को भी खराब कर दे रहा है, राइट? सो अब क्लोज योर आइज एंड सी डिमांड साइड में कहाँ कहाँ किसकी किसकी डिमांड है। फार्मर की डिमांड हो सकती है, इंडिविजुअल की डिमांड हो सकती है, और वहाँ पे इशू क्या क्या आ सकता है। योर आंसर इज रेडी फॉर दिस सेक्शन। देन सप्लाई साइड में, अब सप्लाई साइड डिमांड साइड को ये जानना आपको इम्पोर्टेंट है कि सप्लाई साइड में कौन एग्जिस्ट करता है और डिमांड साइड में कौन एग्जिस्ट करता है। तो सप्लाई साइड में कौन एग्जिस्ट कर रहा है? एनवायरमेंट होगा, ग्राउंड वाटर होगा, सॉरी नेचर है, देन देर इज ऑल्सो रेन सिस्टम, देर इज ऑल्सो गवर्नमेंट। सो दीज आर ऑन सप्लाई साइड। तो इनकी कंस्ट्रेंट जो होगी वो क्या हो जाएगा, वो हमारा चैलेंज हो जाएगा, या फिर इनकी जो जो भी इनके चैलेंजेस होंगे वो वाटर सप्लाई मैनेजमेंट का चैलेंज हो जाएगा। सो इम्बैलेंस ग्राउंड वाटर यूज, व्हाट 60% ऑफ डिस्ट्रिक्ट फेसेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन इशू। तो इम्बैलेंस यूज है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड सरफेस वाटर। रिमेंबर दलवाई पैनल ने क्या बोला था कि देर इज CWC एंड देर इज CGWC, दिस इज कमिटी ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, एंड देन देर इज ग्राउंड वाटर कमिटी। अब इन दोनों के बीच में देर इज मिसमैनेजमेंट। when water is a singular compound and singular thing, why do we have two bodies to look after this? CWC, Central Water Commission, and then Central Groundwater Commission. Why do we have these two separately? So उनका कहना था, the Dalwai Panel Committee, that this should be merged into national water framework. It should be made into a single body. So इससे इसकी वजह से क्या हो रहा है, there is water schizophrenia. Is it not in sync with CWC and CGWC? And then what is happening? Then we have drying river system. In drying river system क्या हो रहा है, over exploitation of groundwater, reduce कर रहा है refilling of groundwater river at the youth stage, which is also in correlation with, मतलब ग्राउंड वाटर इशू क्रिएट कर रहा है रिवर के लिए, एंड रिवर इज क्रिएटिंग इशू फॉर द ग्राउंड वाटर। सो सप्लाई साइड में देख रहे हो कौन कौन सप्लाई करता है पानी, बस वैसे सोचो, एनवायरमेंट सप्लाई करती है, ग्राउंड सप्लाई करता है, रेन सप्लाई करता है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है। इन सब के इशू जो होंगे वो हमारे सप्लाई साइड इशू बन जाएंगे। अब देखो रीजनल इम्बैलेंस है, वाटर इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी,
There are temporal imbalance and spatial imbalance. What is temporal imbalance and spatial imbalance? Temporal is टाइम इम्बैलेंस, टाइम के टाइम पे अवेलेबिलिटी, जैसे डे, नाइट, समर, विंटर. एंड देन यू हैव स्पेशियल वेरिएशन. व्हाट इज स्पेशियल वेरिएशन? कि हो सकता है कि एक जोग्राफिकल एरिया में देर इज मोर वाटर, एक जोग्राफिकल एरिया में देर इज मोर वाटर एंड इन द अदर जोग्राफिकल एरिया देर इज लेस वाटर. फॉर एग्जाम्पल, आप तेलंगाना लो, विच इज इन रेन शैडो एरिया ऑफ ईस्टर्न घाट. बट आंध्र प्रदेश में गोदावरी एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में देर इज रेन. वेस्टर्न घाट पे आ जाओ, there is this portion which is highly rain fed, then there this portion Saurashtra region which is rain scarced. So there is a temporal variation, there is a spatial variation, right? So there is a regional imbalance of water availability. And then this there is a famous issue of outdated governance which lacks any mandate and lacks any expertise as well. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दलवाई पैनल रिपोर्ट ने ये बताया था कि यहाँ पे एक्सपर्टीज का lacking is very prominent issue at every level. And then we have power subsidy. Power subsidy, 60% पंजाब, 80% ऑफ हरियाणा ने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया है वाटर का. And then India has become net exporter of water. What does it mean, net exporter of water? Which means we are doing virtual trade of water. डायरेक्ट बॉटल करके नहीं बेच रहे हैं हम. वाटर गजलर क्रॉप्स जो है ना, इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अल्टीमेटली वी आर एक्सपोर्टिंग वाटर, राइट? वाटर गजलर क्रॉप का एग्जांपल जैसे लेंगे, it requires around 2500 liter water for 1 kg of rice production. So India has become net water exporter. Now see, just by imagining these two things, you know we are addressing demand side challenges and supply side challenges. Now coming to water governance. What is water governance? The laws and policies made to look after the water. Okay, so there are two bodies, CWC and CGWC, made in 19 one was made in 1945, another was 1971. Now this largely have remained unreformed and unevolved as well, and this needs to be addressed as per changing demand. ये हमारा way forward हो जाएगा. What are the issues? कि इनकी आउटडेटेड मैंडेट है. स्टिल दे फोकस ऑन एज ओल्ड मेथड ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन एंड ट्यूबवेल ड्रिलिंग rather than adapting to modern methods. And what are the modern methods here? हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रूफटॉप वाटर कलेक्शन डैम टैंक बना सकते हैं, वाटर रिजुविनेशन यूज कर सकते हैं. बट नहीं, what we are still mandating, we are mandating dam construction, we are mandating tube well drillings. So there is a and these are predominantly staffed by civil engineers and hydrologists. अब इनके पास सोचने के लिए कुछ और होता ही नहीं है. जैसे मेडिकल फील्ड में क्या होता है, व्हेन यू गो टू सुपर स्पेशलिस्ट, जैसे आप सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए. अब वो कार्डियोलॉजिस्ट ही इज नॉट ट्रेन टू लुक आफ्टर एनीथिंग. आपको कुछ और हो रहा है और आप डायरेक्टली कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए. नाउ ही विल ट्राई हिज ऑल द पॉसिबल वेज टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग इन योर हार्ट. क्यों? क्योंकि ही इज ट्रेन फॉर दैट, राइट? इन अ सिमिलर मैनर, प्रिडोमिनेटली व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्टाफ्ड विद सिविल इंजीनियर एंड हाइड्रोलॉजिस्ट, क्या करेंगे? उनका अप्रोच ही उतना है. सो दिस बिकम्स आर इश्यूज, राइट? वाटर गवर्नेंस के इश्यूज है. सेकेंड, सो अब मिहिर रिपोर्ट ये कहती है कि देर इज अ रिक्वायर ऑफ शिफ्ट ऑफ व्हाट? होलिस्टिक रिवर बेसिन मैनेजमेंट शिफ्ट करना है. व्हाट इज होलिस्टिक रिवर मैनेजमेंट शिफ्ट? आई विल टेल यू. इज इन्होंने 3 की टर्म्स इस्तेमाल किए थे. क्या था? निर्मल धारा, अविरल धारा, स्वच्छ किनारा. निर्मल धारा is continuous flow, aviral dhara is unpolluted flow, and swachh kinara is clean river bank. So
इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाहिए। हम ये नहीं करेंगे कि इसके लिए फिर एक अलग कमेटी बनाएंगे, इसके लिए एक अलग कमेटी बनाएंगे, इसके लिए एक अलग कमेटी बनाएंगे, नहीं करेंगे ऐसा हम। अब डोंट वरी कि यहाँ लिखा नहीं है, मैंने आगे उसको लिखा हुआ है, सो डोंट वरी, मैंने जान के नहीं लिखा उसको। एंड डाइवर्सिफाइड एक्सपर्टीज चाहिए हमें। हमें नहीं चाहिए सिर्फ डैम कंस्ट्रक्टर, हमें नहीं चाहिए सिर्फ सिविल इंजीनियर, हमें वहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योर भी चाहिए जो ये बताएंगे कि इनका इफेक्ट क्या होगा। हमें वहाँ पे एनजीओज के लोग भी चाहिए, हमें वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मल्टी प्रॉन्ग स्टाफ चाहिए हमें। सो इससे क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन इशू में क्या होगा, जब हमारे पास ये एक्सपर्टीज नहीं है, दे डू नॉट नो द डिमांड, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द न्यू क्रिएटेड डिमांड्स, सो अल्टीमेटली क्या होता है कि डिलेड अप्रेजल ऑफ टेक। जो दुनिया में जो टेक 1950s में आ गई, हमने 2010 में अडेप्ट किया उनको। क्यों हुआ ये? बिकॉज हमें उसकी नीड समझने के लिए उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए, वही नहीं था। सो दिस बिकम्स required changes. Now understanding what is importance of water use efficacy। अब देखो एक बार जैसे ही ये क्वेश्चन आता है कि what is use of water efficacy, तो आप सोच के देखो कि किसके किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये क्या सिखाएगा और क्या सिखाएगा और किसको सिखाएगा। वाटर यूज एफिकेसी क्या सिखाता है और किसको सिखाता है, जैसे ही ये सोचोगे आपके पास आंसर रेडी है। सोचो फार्मर, फार्मर को ये क्या हेल्प कर सकता है वाटर यूज एफिकेसी, कि वाटर का जुडिशियस इस्तेमाल हो। किस फार्मर को क्या सिखा, क्या बना सकता है फार्मर को, क्लाइमेट चेंज, रेजिलिएंट एडेप्टेशन सिखा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24 ये कहती है इफ नॉट एडेप्टेड, अगर क्लाइमेट रेजिलिएंट एडेप्टेशन नहीं होती है तो राइस यील्ड विल फॉल बाय 20% बाय 2050 एंड रेन फेड राइस यील्ड विल ड्रॉप बाय 3.5%। तो मतलब इरिगेटेड राइस जो हम अभी उगा रहे हैं वो तो 20% से कम हो जाएगा और रेन फेड राइस सिस्टम विल फॉल बाय 3%। सो क्लाइमेट रेजिलिएंट एडेप्टेशन इज नॉट अ लग्जरी नाउ, इट्स अ मैंडेट। ठीक है, तो फार्मर को क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट बना सकता है, इकोनॉमिकल वाइबल उनके पास ऑप्शन दे सकता है। क्यों? लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, दे कैन मेक टैंक, टैंक में दे कैन स्टोर वाटर एंड दे कैन यूज इट व्हेन देयर इज अ ड्राई सीजन। सो मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच लगाना पड़ेगा। सिटीजन्स के लिए क्या हो सकता है वाटर यूज एफिकेसी का बेनिफिट, दैट देयर इज मोर वाटर अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर से पानी निचोड़ के खेती नहीं कर लिया हमने, बचा हुआ है पानी, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर का रिसाइकल करेंगे, वाटर को रीयूज करेंगे। देन इट कैन ऑल्सो गिव फूड सिक्योरिटी, अल्टीमेटली इट विल गिव फूड सिक्योरिटी। क्यों? किसान के पास पानी अवेलेबल रहेगा तो वो अनाज उगाएगा, और जैसे ही वो अनाज उगाएगा हमारा फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगा। गवर्नेंस को भी वो कुछ दे सकता है, क्या देगा? फिजिकल सस्टेनेबिलिटी देगा, इरिगेशन डिपेंडेंसी कम करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम वाटर यूज एफिकेसी बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट को फिजिकली कम सब्सिडी देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी पे, कम सब्सिडी देना पड़ेगा दूसरे एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर में। उससे क्या होगा, हम इस चीज़ को डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे, इरिगेशन डिपेंडेंसी हमारा कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन कम किया है, देर इज नेचुरली अवेलेबल वाटर इन द ग्राउंड और वी हैव क्रिएटेड टैंक्स टू स्टोर वाटर। और इसकी बेनिफिट किसको किसको हो सकती है, फार्मर को हुई, सिटीजन को हुई, गवर्नेंस को हुई, गवर्नमेंट को हुई, एनवायरमेंट को भी तो कुछ बेनिफिट होगा। क्या होगा? ग्राउंड वाटर कंजर्व होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा एंड रिडक्शन इन यूट्रोफिकेशन। सो जस्ट बाय थिंकिंग क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, आई हैव माई डायमेंशन टू आंसर द क्वेश्चन। कम इन। अब न्यू इमर्जिंग चैलेंजेस इन वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। सो ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर आर नॉट सेपरेट कंपोनेंट, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और ये हम अपने आंसर्स में मेंशन भी करेंगे दैट ग्राउंड वाटर एंड रिवर वाटर, सॉरी सरफेस वाटर आर नॉट टू सेपरेट कंपोनेंट। अब देर इज अ न्यू इमर्जिंग ट्रेंड इन दिस दैट a new study has showed that losing river recharges groundwater and gaining river recharges river water। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इन पेनिनसुलर रीजन जो है ना, क्या होता है, जस्ट इमेजिन देयर इज दिस रिवर फ्लोइंग, ओके, देयर इज दिस रिवर फ्लोइंग नाउ at youth stage this water is seeped, groundwater is seeped into this river. So at this stage it is gaining river,
Now imagine if you dig a bore well here and extract all the water. There are multiple bore well here. You have extracted water. So there is less availability of this water. So now this gaining river becomes losing river because now the water is being absorbed into the ground from the river. So when the gaining river becomes losing river, the downstream irrigation, जो irrigation यहाँ downstream में हो रहा होगा, उसके पास तो पानी रहेगा नहीं. So this is very important to understand that groundwater and surface water are not two separate components. तभी दलवाई पैनल ने भी ये कहा कि CGWC एंड CWC को मर्ज करके एक बॉडी बनाओ. रिफॉर्म सजेस्टेड बाय मिहिर शाह कमेटी. क्या रिफॉर्म बोला था मिहिर शाह कमेटी ने? बोला नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल लाना जरूरी है जिसके तहत हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कर रहे हैं. क्या? निर्मल धारा. व्हाट इज निर्मल धारा? कॉन्टिन्यूअस फ्लो. अविरल धारा अनपोल्यूटेड फ्लो. एंड स्वच्छ किनारा इज क्लीन river bank. And for this we will need diversity of expertise. Now you see, यही सब तो सारे constraint थे which were highlighted as a challenge, right? अब now understanding India as net water exporter. How has India become net water exporter? So what does net water exporter even mean? It is virtual trade of water. This is invisible trade. Invisible water trade. These crops, there are some crops which we India exports are water guzzling crops. You write the key term water guzzling crops. Water guzzling crop. Basmati rice, sugarcane. Abhi just I gave you an example that it requires almost 2500 liter water for 1 kg of rice production, which makes India water and energy exporter. So when we say India has become net water exporter, we know what it is. Now, why to practice water management? So now just जैसे ये क्वेश्चन आता है कि why is it important to practice water management, you have this term in mind कि understand who needs to practice. किसको बेनिफिट होगा इससे? फार्मर, सिटीजन, एनवायरमेंट, गवर्नमेंट, एनी स्टेक होल्डर. फार्मर को क्या? सस्टेनेबल प्रैक्टिस, इकोनॉमिकल वायबिलिटी पढ़ा दिया मैं आपको. सिटीजन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ मोर वाटर, एनवायरमेंट के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस, एसडीजीज मीट होगा. गवर्नमेंट के लिए वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड इरिगेशन डिपेंडेंसी कम होगा. आई हैव टॉट यू दिस अर्ली. नाउ व्हाट इज वे फॉरवर्ड? हमारा वे फॉरवर्ड भी रेडी होना चाहिए. अब देखो वे फॉरवर्ड किसके किसके लिए हो सकता है? अकेले हर स्टेक होल्डर के लिए, गवर्नमेंट के लिए होगा, फार्मर के लिए होगा, टेक्नोलॉजी के लिए. क्या हम सब जगह लिखेंगे? नहीं, जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा. बट हमारे पास तो रिपोजिटरी तैयार रहनी चाहिए, राइट? थिंक इन टर्म ऑफ एवरी स्टेक होल्डर. गवर्नमेंट कैसे कर सकती है इस चीज को? गवर्नमेंट अपने हिसाब से कैसे वाटर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है? गवर्नमेंट वाटर यूज इंसेंटिव, जैसे रिमेंबर, जैसे फाइनेंस कमीशन क्या देती है? फाइनेंस कमीशन क्राइटेरिया देती है हाउ टू डिवोल्यूट टैक्सेस. क्या है उसको याद करते हैं हम. आईपैड, फॉरेस्ट ट्री. आई से कितना इनकम डिपेंडेंसी है उसका, कितना पॉपुलेशन है, कितना उसका डेमोग्राफी है, कितना एरिया है, राइट. एंड देन हाउ मच इज फॉरेस्ट कवर एंड हाउ मच इज टैक्स कलेक्शन, है ना. जैसे फाइनेंस कमीशन का ये सारे क्राइटेरिया हैं. उसी तरीके से वाटर यूज इंसेंटिव भी मिलना चाहिए कि जो जितनी जुडिशियस इंसेंटिव कर रहा है उसको, जो जितनी जुडिशियस इस्तेमाल कर रहा है उसको वैसा इंसेंटिव मिले. एंड देन वी ऑल्सो नीड
कि लैंड कितना प्रोड्यूस कर रहा है वाले कंसेप्ट से मूव करके वाटर कितना प्रोड्यूस कर रहा है इस कंसेप्ट पे मूव करना है। कब तक लैंड प्रोडक्टिविटी पे जाते रहेंगे? इससे क्या हो रहा है? लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंड हो रहा है, ज्यादा खाद ज्यादा बीज डाल के हम इसको और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज रॉन्ग। लैंड प्रोडक्टिविटी पे नहीं जाना है, हमें जाना है वाटर प्रोडक्टिविटी पे, कि वाटर कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है। देन एमएसपी एमएफपी is also, again see, this is the very key question which was asked. Sorry, not here. Remember that question 2025 में आया था कि what are the decisions, what are the factor that influences the decision? Again, MSP and MFP are the biggest decision influencing. क्रॉपिंग पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, राइट। एंड देन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिहिर सजेशन को इम्प्लीमेंट करो। वीजी राम जी जो है उसको वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करो, ना कि सिर्फ अननेसेसरी वर्क कर रहे हैं विच इज नॉट होलिस्टिक इन नेचर। एंड देन नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल को ट्रू स्पिरिट में लॉन्च करना है। सो दीज आर वे फॉरवर्ड फॉर द गवर्नमेंट। देन देयर मस्ट बी वे फॉरवर्ड फॉर फार्मर एज वेल। उनको क्या करना है? बिहेवियरल चेंज लाना है। हाउ बिहेवियरल चेंज कैसे आएगा? थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी एंड को रैशनलाइज करो, नहीं तो जबरदस्ती का इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। सो हम ये नहीं कंप्लीट बैन ऑन इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, नो। हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी शुड बी रैशनलाइज्ड। देन देयर शुड बी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एज वेल। क्या कर सकते हैं? माइक्रो इरिगेशन लाओ, ड्रिप इरिगेशन लाओ, कि हम उसका जो पडल मेथड है हमारा राइस उगाने का, उसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से कर सकते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन ऑफ मेघालय, रिमेंबर, उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। सी, अब इसमें ना हर एक चीज पे हमें डिटेल नोट्स नहीं चाहिए कि माइक्रो इरिगेशन पे डिटेल नोट्स दे दो, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, नो, दीज आर द थिंग्स वी नीड टू राइट एज अ पॉइंटर्स इन आवर आंसर। टेक्नोलॉजिकली और क्या यूज करते हैं? रिसाइकल, रिड्यूस एंड मैनेजमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। क्रॉप सिलेक्शन थ्रू रिमोट सेंसिंग, कि किस एरिया में कौन सी क्रॉप ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। अब इन सब को करने के लिए जब गवर्नमेंट को हमने वे फॉरवर्ड बता दिया, तो गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी? गवर्नमेंट का क्या तरीका होता है? गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। सो विल लुक एट सम स्कीम्स। सो जब गवर्नमेंट स्कीम्स है तो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है तो दो स्टेट की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्कीम लाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम लाती है, हम थोड़ा थोड़ा दोनों में से ध्यान देख लेंगे। देन देर इज प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। इसके तीन मेन कंपोनेंट है, क्या? हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? हर खेत को पानी, इट अंडरस्टूड। पर ड्रॉप मोर क्रॉप अंडरस्टूड। वाटरशेड मैनेजमेंट, यहाँ पे प्री थोड़ी है कि इसमें से डेटा, वी आर रीडिंग इट होलिस्टिकली फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग द आंसर। कैसे लिखेंगे? और ये तभी लिख पाएंगे जब हमें ये 8 तरीके से हमारा नोट बना रहेगा, राइट। वी आर जस्ट अबाउट 33 मिनट्स, आई एम बस थोड़ा सा और टाइम लूंगा मैं, बस खत्म ही है। देन रेन रेन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। व्हाट इज रेन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम? इट एम्स टू इंटीग्रेट फार्मिंग विथ रेन फेड एरिया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन रेन फेड एरिया। व्हाट डज दिस मीन? जैसे इन मेघालय देर इज, सॉरी, इन मेघालय एंड अरुणाचल देर इज अ प्रैक्टिस ऑफ कि हम राइस के फील्ड में जब वाटर पडल बनाते हैं, हम फिशरी भी इसी में करते हैं। सो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो रही है। अब जैसे हमने हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिस किया, तो बगल में हमने पिगरी भी लगाई। हमने अगर फिश पॉन्ड बनाया है तो हम पास में ही उस पानी का इस्तेमाल फॉर बेटर इरिगेशन कर रहे हैं। सो दिस इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेथड, ओके। देन जल जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान का एम था टू कन्वर्ज ऑल द प्रोग्राम एग्जिस्टिंग ऑफ वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम को कन्वर्ज करके एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए। देन देयर इज आल्सो जल जीवन मिशन व्हिच इज यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर। Also, this is also important for SDG 6. What is SDG 6? Clean water and sanitation. याद रखना है एकदम। Then there are some state led scheme. Then मिशन काकतिया। मिशन काकतिया वो तेलंगाना का एक मिशन था जिसमें रिजुविनेशन ऑफ टैंक, रिस्टोरेशन ऑफ माइनर इरिगेशन, जितने भी सॉल्यूशंस थे, जैसे टैंक रिजुविनेट करना हो गया, वेल्स को रिजुविनेट करना हो गया, दीज आर थिंग्स। देन आंध्र प्रदेश का एक था नीरू चेट्टू। सो व्हाट वाज दिस? प्रमोटिंग चेक डैम्स, ठीक है, एंड परकोलेशन टैंक्स, वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज कंस्ट्रक्शन, ये था नीरू चेट्टू। देन एक अभियान है
जलयुक्त शिविर ये कहाँ चलता है? महाराष्ट्र में। कृषि भाग्य कर्नाटका में। सो दीज आर सम स्टेट लेड गवर्नमेंट। उसी तरीके से देर आर सम केस स्टडीज ऑल्सो, मतलब केस स्टडीज में यू कैन यूज दिस इन एग्जाम्पल्स। आई एम नॉट टीचिंग यू केस स्टडीज बिकॉज अगेन दैट विल बिकम वेरी लॉन्ग, इट्स नॉट द पर्पस हियर। See, remember, this is not a foundation course. This is the course which will give you an idea on how to progress यहाँ से आगे। फाउंडेशन कोर्स जब करेंगे तब करेंगे, बट अभी नहीं है, फाउंडेशन कोर्स अभी नहीं है। ओके, सो दीज आर सम केस स्टडीज। आप केस स्टडीज खुद देख लेना। ओके, बिकॉज केस स्टडी पढ़ाने के लिए कुछ भाई मिशन काकातिया है, देन भुंगरो वाटर है, फिर 24/7 मीटर इन पंजाब में लगाया गया, हाइड्रोपोनिक्स इन जैसे आपका वहाँ होता है ऑगस्टस ऑस्ट्रेलिया में हाइड्रोपोनिक्स यूज़ किया गया, जहाँ पे टोमेटो विदाउट सॉइल को यूज़ कर रहे हैं। दिस नॉट वाटर, दिस इज सॉइल। देन पानी पंचायत इन ओडिशा, इट्स अ कम्युनिटी प्रैक्टिस। दीज आर सक्सेसफुल केस स्टडीज। ओके, देन I2U2 में वाटर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 पिलर्स में जो साइन किया हमने, एक वो भी पिलर है। नाउ कमिंग टू माइक्रो इरिगेशन। सी व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन? एक्सप्लेन नहीं करना है कि क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन था, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस? डू वी रियली नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन? नहीं। हमारे पास माइक्रो इरिगेशन के लिए इंट्रोडक्शन क्या होगा? According to Ashok Dalwai panel, micro irrigation can lead to 40% water saving and 45% increase in production and 50% increase in income। ये मेरा एकदम क्लियर कट है। माइक्रो इरिगेशन क्वेश्चन आया, अशोक दलवाई पैनल का रिपोर्ट लिखेंगे, 40% वाटर सेविंग हो सकता है, 45% इंक्रीज। अब देखो इस डेटा को लिखने का तरीका ऐसे है, अशोक दलवाई पैनल क्या कहा? 40% सेविंग, 45% increase in production and 50% economical growth, राइट? ऐसे लिखना है अपने नोट्स में, एग्जाम में नहीं लिखना है, नोट्स में लिखना है। अब एग्जाम नोट्स में बैठ के नहीं, अशोक दलवाई पैनल सेज दैट दिस विल लीड, ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे, बट आपके जब नोट्स बनेंगे वो नोट्स ऐसे बनने चाहिए, बिकॉज अगेन यहाँ पे आपको जितना भी रिफ्लेक्शन, सॉरी आंसर में जितना भी रिफ्लेक्शन होगा एग्जाम में, वो यहीं का रिफ्लेक्शन होगा, right? It will not come from somewhere else. So preparing your note very critically is important. So micro irrigation का इंट्रोडक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू अशोक दलवाई पैनल कमेटी। हम इसको अगर मैं चाहूँ इसको कंक्लूजन में भी लिख सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख सकता हूँ इसको। अब देखो फिर वही सारे डायमेंशन पढ़ेंगे, व्हाट इट इज, हाउ इट इज डन, चैलेंजेस क्या है। सो इशू इन माइक्रो इरिगेशन क्या हो सकता है, सोच के देखो। माइक्रो इरिगेशन एक बार ये फोटो देखो और इमेजिन करो इसमें क्या क्या इशू आ सकती है। महंगा होगा, क्लॉगिंग एंड मेंटेनेंस चाहिए होगी, टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा, कौन सा पंप कितने प्रेशर पे कहाँ एडजस्ट करना है, टैम्परिंग ऑफ एनिमल्स हो सकता है इसमें, वाटर क्वालिटी एंड कंसर्न ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है विच विल लीड टू व्हाट, क्लॉगिंग एंड मेंटेनेंस। यूनिफॉर्मिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, प्रेशर चाहिए, फ्लक्चुएशन होगा, फील्ड टेरिंग कैसा है, हो सकता है इंक्लाइन वाटर इंक्लाइन फील्ड हो, दिस कैन बी कंसर्न। पावर एनर्जी अवेलेबिलिटी, कि मान लो जैसे बिजली नहीं है तो कैसे करेंगे हम, ये इशू है, चैलेंजेस है। स्केलेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, चलो छोटे फार्म में तो हो सकता है, जहाँ बड़े फार्म है वहाँ पे क्या करेंगे। सो दीज आर इशू। सो इनके कुछ बेनिफिट भी तो होंगे, राइट? व्हाट आर द बेनिफिट? अब सोचो, एकदम से इमेजिन करो, सब कुछ सोच लो कि किस किस एरिया में बेनिफिट कर सकता है। एनर्जी एंड लेबर सेविंग में कर सकता है, पाइप नहीं बिछाने, क्लॉग्स नहीं, ड्रेन क्लॉग्स जो फंस गए उनको नहीं हटाना, राइट? इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है बिकॉज हम टारगेटेड वाटर डिलीवरी कर रहे हैं। एनहांस न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, हम पानी में ही न्यूट्रेंट मिला के भेज सकते हैं, हमें अलग से छीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी है, राइट? एनर्जी एंड लेबर सेविंग, क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर, इससे हम एसडीजी भी मीट कर रहे हैं, वाटर सेविंग भी कर रहे हैं। वाटर यूज एफिकेसी क्या था, वाटर एक्सट्रैक्टेड अपॉन वाटर यूटिलाइज्ड, राइट? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सॉइल कंजर्वेशन, prevent soil salinity, eutrophication, prevent soil erosion। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज नाउ सी, इससे मैं आपको एक अभी आंसर करके दिखाता हूँ।
एंड देन देयर विल बी वे फॉरवर्ड फॉर माइक्रो इरिगेशन। क्या हो सकता है, हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, सरकार को भी सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ फार्मर को भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे, सजेशन क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी ईयर अराउंड, साल दर साल उसको एक्सपैंड करना है। फार्मर को एजुकेट करो, कैसे, यूजिंग पंचायत भवन, कृषि मेला, स्मार्ट विजुअल बोर्ड्स। नाउ व्हेन योर आंसर हैज दिस पंचायत भवन दिखेगा ना, जब फार्मर एजुकेशन थ्रू पंचायत भवन, आपका आंसर क्रेडिबिलिटी यही बन रहा है, कृषि मेला, स्मार्ट विलेज बोर्ड यूज करके। देन माइक्रो इरिगेशन फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड स्पेशल लोन स्कीम्स विथ इंसेंटिव्स फॉर व्हाट, फॉर माइक्रो इरिगेशन। जैसे पीएसएल नॉर्म, जैसे हम वो, हाँ पीएसएल नॉर्म्स है, वैसे पीएसएल में हम एक स्पेसिफिक बना सकते हैं कि माइक्रो इरिगेशन के लिए लोन है। फिर गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स भी होंगे इस पे, और गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट ने 5000 करोड़ ऑफ कॉर्पस नबार्ड को दिया था माइक्रो इरिगेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, 90 लाख हेक्टर ऑफ लैंड इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। इंकरेज क्या करता है, दिस इंकरेजेस वाटर हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड वाटर मैनेजमेंट। सो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, एज पर दलवाई पैनल रिपोर्ट, माइक्रो इरिगेशन यूजिंग ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलर शुड बिकम स्टैंडर्ड इरिगेशन प्रैक्टिस। Sensor boards and drone mappings, data analysts can be used for smooth adaptation. My micro irrigation topic is ready, right? खत्म इतने में। Now let's simply write this question. चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और आपके सामने इसका आंसर वर्दीनेस चेक करता हूँ कि मैंने जो कंटेंट पढ़ा उसका आंसर वर्दीनेस क्या होगा। चलिए, now your job is to write this। कैसे लिखोगे, नाउ व्हेन यू रीड दिस क्वेश्चन, एग्जाम में आता है आपको तो क्या लिखते हैं, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। अब जैसे मैं लिखूंगा कि वाटर एड रिपोर्ट पुट्स इंडिया इन डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी, टॉल्कन मीटर suggests most of India is under water stress। ये लिख दिया, मेरा हो गया, टाल्कन मीटर लिखा मैंने, उसको अंडरलाइन कर दिया। और लिख सकता हूँ कि इट हैज़ गॉन फ्रॉम 1543, वाटर अवेलेबिलिटी पर ईयर हैज़ गॉन टू 1143 मीटर क्यूब पर ईयर, विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। सो ये एस्टेब्लिश कर दिया कि वाटर क्राइसिस है, राइट। एंड देन टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प, देन अगेन राइट ऑल द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स लिखो, एनर्जी, एसडीजी, वाटर, वाटर एफिकेसी, इम्प्रूव्ड क्रॉप, एंड देन सिंपल कंक्लूड कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स लिख सकते हैं कि हाउ गवर्नमेंट इज डूइंग, देन कंक्लूड कर सकते हैं 40% ऑफ वाटर सेविंग, 45% इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ बेनिफिट्स, हाउ इज बेनिफिट, व्हाट एक्सटेंट, मिहिर सर रिपोर्ट, 40% water saving, 45% increase in power production and 50% increase in income। See, it converted into, right, my study has converted into questions। मैंने क्या यहाँ पे लिखा था कि हाउ इरिगेशन, नहीं, मैंने कंटेंट को यूटिलाइज किया। सो पहले मेरा आंसर, सो नाउ दिस इज आर्ट, पहले मेरे आंसर में मैंने ये बता दिया कि वाटर क्राइसिस कैसे है, इसका डेटा कहाँ से लाया मैं, अपने नोट से। देन हाउ, हाउ इज बेनिफिट्स, दीज आर द बेनिफिट्स, एनर्जी लेबर सेविंग कर सकते हैं, इंप्रूव प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। एंड देन टू व्हाट एक्सटेंट, व्हाट एक्सटेंट ये अशोक दलवाई पैनल ने कहा है, टू व्हाट एक्सटेंट 40% वाटर सेविंग हो सकती है, 45% प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है 50। अब बोलोगे इतना काफी है, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं लिखना, वहां पे ग्रंथ नहीं लिख के आना, रिपोर्ट मिहिर शाह ने तैयार कर दिया, दलवाई पैनल ने तैयार कर दिया रिपोर्ट, आपको नहीं तैयार करना रिपोर्ट। सो गेटिंग माई पॉइंट, तो एकदम क्रिस्प एंड कंसाइज। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड देन विल सी next lecture। See, I'm recording this at very odd hours. Like now it is 3:36 a.m. So you do justice by studying, okay? And spread the word। मैं देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए,
you also need to spread the word for me. Thank you so much. See you in the next video.